Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are back with lecture number 9. I am Asif Munir, teaching you CSC 271 database systems. Let's start with the summary of previous lecture. In previous lecture, we covered some additional operations that are available in relational algebra. We talked about Cartesian product. Then we saw that how joins can be basically performed on multiple relations, and we discussed some different types of joins. We discussed about theta join, equi-join, natural join, and then we discussed about outer join, and in outer join we discussed left outer join, right outer join, and full outer join, and finally we talked about semi-join. Let's start from where we left. There are still some operations left that needs to be discussed, and we will hopefully complete those operations, and then we will finally move towards relational calculus. After join, the next operation that is available in relational algebra, and it is not one of the basically operations that are available in relational algebra, division is another important relation that you come across frequently in databases. The symbolic representation for division is the same as we studied in our mathematics course. Suppose we have two relations R and S, then R division S is a relation over the attribute set A, and the relation S is over, suppose if the relation R is defined over the attribute set A, and the relation S is defined over attribute set B, and such that B is a subset of A, and suppose we take C, let's assume C, and that is equal to A minus B. A minus B will be the attributes that are available in A but not in B. I hope you remember the difference, set difference or minus operation, and C is the set of attributes of R that are not attributes of S. So if you have gone through this basically concept, if you are able to understand this concept, then it won't be difficult for you to understand the division operation. So keep in mind, if R basically relation has a set of attributes, and suppose we say that is A, and we have B attributes, that is the set of the attributes for the relation S, and A minus B, what does it mean? A minus B means the attributes that are available in R relation but that are not available in S, and we say that is C, then division operation could be defined as a relation over the attribute C, means the resultant relation after the division operation will contain only attributes that will be available in relation R but not in relation S, that consist of set of tuples from R. Definitely when we are showing only the attributes that are available in R, it means it will only basically show the tuples that will be in R, but the condition is that the match all these tuples from R that match combination of every tuple in S. So if you have multiple basically tuples in S, then all the tuples in R should match those
combination of the tuples from S. I hope you might not be able to basically understand this right now, but when we will basically look at the example, then I hope things will be okay. So let's look at the example. Okay, before going to example, right, as I told you that all these additional operations that are not the basic operations, they can be basically expressed in terms of the basic operations, as we saw that the join that could be represented in terms of basically Cartesian product, and likewise division can be expressed as follows. Suppose we have relation R, then if we project R over C, and I hope you still remember from the last slide that C is the attributes or set of attributes that are available in R but not in S. So we need to include only those attributes of the R that are in R but not in C. So if we give it a name T1, then what we do, we perform a Cartesian product over T1 and S, and the result of this Cartesian product basically then we perform a set difference between the result of this Cartesian product and R, T1 cross S minus R, and again we project over the attributes that are only available in R but not in S. And finally basically we can give it a name T2, and if we perform a set difference on T1 and T2, T1 minus T2, then this could be equivalent to division of R divided by S, or R division S, and these all steps will be equivalent. So division could also be expressed in terms of basically these basic operations that are Cartesian product and projection and set difference. Okay, let's look at the example. Suppose we have a situation that you have to identify all clients who have viewed all properties with 3 rooms. So let's try to understand this example, what basically we are being asked. So we need to identify only clients, right? We are interested only in clients. So which kind of clients? Okay, who have viewed all the properties, right, with 3 rooms. So now you need to understand that first of all the information that we need to extract is available in viewing relation. How? Basically we are interested to basically look at the information that is available in viewing, right? What kind of information? That they have viewed the properties. So a client should have viewed a property, but there is again a condition that what kind of properties? Properties with the 3 rooms. But this room, as I discussed in the last lecture as well, that whenever you are basically listening to this particular lecture, you need to basically place the dream home case study in front of you, so that you are clear that what kind of basically attributes or what kind of relations we need to basically access, right? So the room information is available in property for rent rooms, right? So you need to basically look at these 2 relations, because the client number that is available in viewing and property number is also available in viewing. So property number is all acting as a primary key
plus foreign key in viewing and as primary key in property for rent. So you need to understand this. If we look at this situation, then we can use division in this particular scenario. So we projected over viewing, and we were interested only in two attributes. One is client number and property number, right? So from the viewing relation, we had a projection, and we were only interested in client number and property number. Then we divided it with our relation that is a result of projection plus restriction on property for rent. And property for rent, we specifically first apply selection that rooms equals to 3. So only those properties should be selected where number of rooms is 3. So we got only property number of those properties where the property number was basically the number of rooms were 3. So we divide this thing, and basically this is the divisor, and the dividend is the viewing relation where we have two attributes, client number and property number. And as I discussed, the result of this relation will be the number of attributes or the attributes that are available in viewing relation but not in property for rent. So if you talk about C that we discussed in the definition of division operation, then C is equal to client number, because the client number is available in our left relation, right, in viewing, from viewing what we are extracting, and the right side contains only one attribute, that is property number. So property number is again present there. So C is a subset. Basically C is the A minus B, and A contains client number and property number, and B contains only property number. So first of all, the result of this relation will contain only one attribute, that will be client number. But how we will extract the tuples? All the tuples in this first relation should basically match the combination of each tuple in the right hand relation. So first of all, I show you the results, but don't look at the result table right now. Just look at the left hand portion. So we extracted only client number and property number from viewing relation, and you can see again you need to place the complete viewing relation in front of you, and then look at this first half that we projected over viewing on only two attributes, client number and property number. So the first is CR56 PA14, CR76 PG4, CR56 PG4, CR62 PA14, CR56 PG36. So that was the result of the left half. Then we have divided by operation, but keep in mind we haven't basically performed the division yet, but look at the right hand side. What will result basically what will be the result of the right hand portion after the division? So we were basically extracting information from property for rent table, and we were extracting only one attribute, that was property number, but we selected the property number of only those properties that have 3 rooms. So there is a selection or restriction basically that is applied on property for rent. So there are only 2 properties, PG4 and PG36, that are basically that have 3 rooms. So now the division operation says that this right hand side relation has only 2 tuples, right, PG4 and PG36. So the combination of these tuple should match each tuple. That will be the result of division operator. What does it mean? It means that PG4 and PG36 should
be basically viewed by the each client. If any client who views both these basically properties, then that client has viewed all the properties that have 3 rooms. So if we look at both these tables, we see that CR56, it has viewed 3 properties basically, one PA14, the other one PG4, and the third one is PG36. So if we look at the right hand side, we have only 2 properties, PG4, PG36, that have 3 rooms. So the client number CR56 have viewed both these properties. So he is basically satisfying our predicate in this particular example. It means that the client number CR56 has viewed all the properties that have 3 rooms. Definitely he has basically viewed additional properties as well, but we were asked that we need to list the clients who have viewed all the properties with 3 rooms. So CR56 is one of the basically client that have viewed all the properties with 3 rooms. But if we look at CR76, CR76 have viewed PG4, but it hasn't viewed PG36. Therefore it is not included in the division result. Likewise, CR62, he hasn't viewed basically PG4 or PG36. Therefore it will also be not included in the result of division. So there will be only one client that will be included in the division, and that will be CR56. So again I try to basically define the division operation कि जी division operation में जो आपका right side है, जो divisor है आपका, ठीक है, डिवाइजर का जो जितनी टुपल्स हैं उस सारे के कॉम्बिनेशन के लिए आपका जो है वो जो भी टुपल जो आपके उस तरफ वाली है वो आपके लेफ्ट साइड वाले या डिवाइडेंड के जो आपके रिलेशन में है, वो इनके सारे कॉम्बिनेशन को जब वो जो है वो मैच करेगी तो तब बेसिकली वो वाला जो है वो सिलेक्ट होगा। और आपको जैसे मैंने बताया था कि आपका सिर्फ एक जो या ऐसे एट्रीब्यूट उसमें इंक्लूड होंगे जो आपके पहले रिलेशन में हैं लेकिन दूसरे रिलेशन में नहीं है, वही वाले एट्रीब्यूट्स जो है वो इसमें इंक्लूडेड होंगे। तो मतलब इस डिवीजन को परफॉर्म करने के लिए हमें पहले प्रोजेक्शन अप्लाई करनी पड़ी। आपने देखा कि हमने व्यूइंग को प्रोजेक्ट किया क्लाइंट नंबर और प्रॉपर्टी नंबर के ऊपर, और जो प्रॉपर्टी फॉर रेंट था उसको सिर्फ प्रॉपर्टी नंबर के ऊपर जो है हमने प्रोजेक्ट किया। दैट्स व्हाई वी वर एबल टू परफॉर्म दिस डिवीजन ऑपरेशन। लेकिन डिवीजन ऑपरेशन इज अगेन अ वेरी यूजफुल ऑपरेशन एंड इट इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो अगले ऑपरेशन है वो है एग्रीगेशन के ऑपरेशन। एग्रीगेशन जो है हमारा, अब आप जब भी आप डेटाबेस सिस्टम्स की बात करते हैं और किसी भी किस्म के डाटा की बात करते हैं तो समटाइम्स वी नीड टू हैव द टोटल्स, राइट। कि जी मसलन फ़र्ज़ करें कि मसलन हम एक सिस्टम बना रहे थे जिसमें हम सारे अपने मंथली एक्सपेंसेस लिख रहे थे, तो एट द एंड ऑफ द मंथ वी विल बी इंटरेस्टेड कि जी हमें टोटल मिल जाए कि इस मंथ का हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ। या मसलन फ़र्ज़ करें कि जैसे हमारा स्टाफ का रिलेशन है और स्टाफ के रिलेशन के अंदर हमारी सैलरी की फील्ड है और वी आर आस्क्ड कि जी हमारी जो टोटल सैलरी का सम है जो हम दे रहे हैं वो कितना है, जितना भी सारे एम्प्लॉइज़ को, मसलन आपका जो ओनर है इफ़ ही इज़ इंटरेस्टेड कि जी आप वो अगर देखना चाहे कि आप जो टोटल सैलरी वो अपने एम्प्लॉइज़ को पे कर रहा है वो कितना है तो आप सम निकाल लेंगे। या आप देखना चाहते हैं कि वो कितने तादाद में हैं बेसिकली एम्प्लॉइज़, तो हम उसको काउंट कर लेंगे जी कि इतने एम्प्लॉइज़ हैं, ठीक है, स्टाफ नंबर के ऊपर हम लगा देंगे, उनको चेक कर लेंगे। तो इस किस्म की जो सिचुएशन है
वो उसमें हम बेसिकली एग्रीगेशन जो है वो अप्लाई करते हैं, और एग्रीगेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये साइन जो है, इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन अब इसको आप जो भी एग्रीगेशन, हम फिलहाल इसको नेम करते हैं कि हम इसको एग्रीगेशन कहते हैं, और एग्रीगेशन की बेस के अंदर AL है और पैरेंथेसिस के अंदर आपका R है, और R बेसिकली इज अ रिलेशन। अब कीप इन माइंड एग्रीगेशन कैसे होती है, अप्लाइज एग्रीगेट फंक्शन लिस्ट AL जो है वो एग्रीगेट फंक्शन लिस्ट है। अब जितने भी हमारे पास, हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में कि हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के एग्रीगेशन फंक्शन जो है वो अवेलेबल हैं, उनमें हम जितने भी एग्रीगेशन फंक्शन लगाना चाहते हैं वो हम लगा सकते हैं। टू R हमारा रिलेशन है जिसके ऊपर बेसिकली हम ये एग्रीगेशन फंक्शन अप्लाई करेंगे टू डिफाइन अ रिलेशन ओवर द एग्रीगेट लिस्ट। और एग्रीगेट लिस्ट जो होती है हमारी, दैट कंटेन्स वन और मोर एग्रीगेट फंक्शन कॉमा एट्रीब्यूट पेयर्स। अगेन मतलब अब ये थ्योरेटिकली इन चीज़ों को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डिफिकल्ट होती है, लेकिन जब हम इसको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं तो आई होप कि चीज़ें आपको आसानी के साथ समझ आ जाएंगी। ठीक है जी। तो हमेशा जो AL होती है, इट कुड बी वन और मोर पेयर्स, और हमेशा ये पेयर की फॉर्म में होगी। पेयर किसका, एग्रीगेट फंक्शन, और एग्रीगेट फंक्शन किस एट्रीब्यूट के ऊपर आपने लगाया। ठीक है, मसलन जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि मैंने कहा जी सैलरी वाले जो एट्रीब्यूट है उसका सम कैलकुलेट करना है, तो सम हमारा एग्रीगेट फंक्शन होगा और किस एट्रीब्यूट पे लगेगा, सैलरी के ऊपर लगेगा। और मैं एग्जांपल जब आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा तो फिर मैं इन चीज़ों को और ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ मेन जो हमारे पास एग्रीगेट फंक्शंस अवेलेबल हैं, व्हाट काइंड ऑफ एग्रीगेट फंक्शंस आर अवेलेबल, जो कि हमारे रिलेशनल अलजेब्रा में अवेलेबल हैं। उसमें सबसे पहला है हमारे पास काउंट जैसा कि नाम से जाहिर है, काउंट इज वेरी सिंपल के बेसिकली इट प्रोवाइड यू द काउंट ऑफ अ पर्टिकुलर और एसोसिएटेड एट्रीब्यूट जिसके ऊपर आप बेसिकली इसको अप्लाई कर रहे हैं। तो मसलन फर्ज करो कि मैं स्टाफ नंबर के ऊपर अप्लाई करूं काउंट। ठीक है, हमारे स्टाफ का रिलेशन है और स्टाफ के अंदर स्टाफ नंबर की फील्ड है, और स्टाफ नंबर आपको पता है यूनिक है। ठीक है, तो अब इट मींस काउंट अगर मैं स्टाफ नंबर पे अप्लाई करूंगा तो वो काउंट करेगा कि इस एट्रीब्यूट के अंदर कितने जो है वो स्टाफ नंबर मौजूद है। तो इट मींस कि ये टपल्स कैलकुलेट करेगा, काउंट करेगा स्टाफ नंबर की मतलब एट्रीब्यूट के ऊपर। तो जो रिजल्ट देगा वो क्या होगा, इट मींस कि इतने स्टाफ जो है हमारे स्टाफ के रिलेशन में मौजूद हैं। ठीक है, सम जो है, सम अगेन सम रिटर्न करेगा ऑफ द एसोसिएटेड एट्रीब्यूट जिसके ऊपर आपने अप्लाई किया सम। ठीक है, तो मसलन अब देखें कुछ चीज़ें अब बड़ी कुछ लॉजिकली जिनकी सेंस बनती है आप उधर ये अप्लाई करेंगे। मसलन सम, आप नेम के एट्रीब्यूट पे सम अप्लाई करने का कोई हमें लॉजिकली सेंस नहीं बनता। तो सैलरी जो है, सैलरी का जो एट्रीब्यूट है, सैलरी क्या है, कोई मतलब पैसे हैं हमारे, तो पैसों के ऊपर हम सम का जो ऑपरेशन लगाएं तो वो कुछ थोड़ा सा हमें लॉजिकली सेंस बनती है कि वो सम हो जाएंगे और हमें पता चल जाएगा हम टोटल सैलरी कितनी हमारी तमाम एम्प्लॉयज़ को जा रही है। तो मतलब आपने ये जो ऑपरेटर्स हैं या जो ऑपरेशंस हैं, ये जो फंक्शंस हैं, ये अप्लाई करने हैं तो थोड़ा सा आपने ये भी जहन में रखना है कि जहाँ पे आप इनको अप्लाई कर रहे हैं वहाँ इनकी लॉजिकली कोई सेंस भी बनती है या नहीं बनती। इसी तरह हमारे पास एवरेज का फंक्शन जो है वो एवरेज रिटर्न करता है, और एवरेज भी अगेन कोई न्यूमेरिक जो होनी चाहिए वैल्यू। ठीक है, और एवरेज अगर हम सैलरी की ऊपर भी अप्लाई करें तो अगेन इट मेक सेंस, ये हमें एवरेज सैलरी ऑफ स्टाफ निकाल देगा, और एवरेज जो है वो इस तरह काम करेगा। मिनिमम से निकला है बेसिकली, तो मसलन हम ये देखना चाहें कि कौन सा स्टाफ मेंबर है जिसकी सबसे कम सैलरी है, राइट। तो या इसी तरह हमारी कोई एज की फील्ड चल रही थी या कोई इस किस्म का सिनेरियो है तो हम वहाँ से मिन उसके ऊपर अप्लाई करके हम देख सकते हैं कि वो उसकी मिनिमम वैल्यू रिटर्न करेगा। इसी तरह मैक्स जो है वो मैक्सिमम से निकला है, तो मैक्स इज अपोजिट टू मिन एंड इट रिटर्न्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स। सपोज अगर जी हम वी आर इंटरेस्टेड कि जी हम कौन बंदा जो है हमारे स्टाफ में वो सबसे ज़्यादा सैलरी ले रहा है, तो इफ़ आई बेसिकली अप्लाई मैक्स ऑफ सैलरी तो मुझे वो सैलरी मिल जाएगी कि कौन सी सैलरी है वो जो सबसे ज़्यादा जो है वो आ रही है। तो ये बेसिकली हमारे जो है वो एग्रीगेट ऑपरेशंस हैं जो कि हम अपने डेटाबेसेस के ऊपर अप्लाई करते हैं। ओके, एग्रीगेट ऑपरेशन आर वेरी इंटरेस्टिंग रियल लाइफ, और इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है
हमारे पास बहुत सारा डाटा होता है जिसके ऊपर हम एग्रीगेशन फिर अप्लाई करते हैं। सपोज यू आर आस्क्ड कि जी हाउ मेनी प्रॉपर्टीज कॉस्ट मोर देन 350 पर मंथ टू रेंट। जरा क्वेश्चन को गौर से देखें। आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसी कितनी प्रॉपर्टीज हैं जिनकी जो रेंट है पर मंथ दैट इज मोर देन 350 नहीं, 350 से ज्यादा। अब अगेन आई वुड रिक्वेस्ट कि जी पहली बात कि जब भी आप ये एग्जांपल्स देख रहे हैं तो अपने वो जो डीबीएम जो आपके रिलेशंस हैं, इंस्टेंसेस ऑफ रिलेशन हैं, उनको सामने रखें। चैप्टर 3 में अवेलेबल हैं, इन स्लाइड्स में भी जो है वो पिछले हमारे कुछ लेक्चर्स में जहाँ पे हमने शुरू किया था ये रिलेशनल अलजेब्रा, वहाँ पे भी मैंने आपको दिए हुए हैं। तो वो ज़रूर अपने सामने रखें ताकि आपको क्लियर हो कि आपको जो पूछा जा रहा है वो किस रिलेशन से कंसर्न्ड है और उस रिलेशन में क्या क्या डाटा अवेलेबल है, ताकि आपको रिजल्ट जब आप देखें तो आपको क्लियर हो कि जो ऑपरेशन जब परफॉर्म हो रहा है तो किस तरह बेसिकली इसका रिजल्ट आ रहा है। अब इसमें अब आप देखें तो पहली बात कि हमें काउंट पूछा जा रहा है, राइट। इट्स वेरी ऑब्वियस हाउ मेनी प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो हाउ मेनी मींस काउंट पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आपसे पूछा किसके बारे में जा रहा है, प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा जा रहा है। तो प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन और रेंट उसका कहां पे अवेलेबल है, वो प्रॉपर्टी फॉर रेंट के रिलेशन के अंदर अवेलेबल है। तो हमने कहा जी अब ये देखें, अब ये वही वाला ऑपरेशन है रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन जो है आपको पता है रीनेमिंग के लिए यूज होता था, और हमने क्या किया, जो हमारा रिजल्ट आएगा इस एग्रीगेट फंक्शन को अप्लाई करने के बाद किसी भी, और आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, भूलना नहीं है ये चीज़ कि जो भी आपके रिलेशनल मॉडल में जो भी मतलब ऑपरेशन आपको परफॉर्म करते हैं वो ऑपरेंड्स भी रिलेशन होते हैं और जो रिजल्ट भी आता है वो भी क्या होते हैं, वो भी रिलेशन होते हैं। तो अब आप देखें कि आपने एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई किया, ये पहले ये जो एग्रीगेट से पहले वाला हिस्सा है इसको रीनेम वाले को भूल जाएं फिलहाल। अब आप देखें आपने क्या कहा, आपने कहा जी काउंट करो एग्रीगेट फंक्शन का वो जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उसको आपने यूज किया, और हमने कहा था इसकी बेस में क्या आ सकता है, इसमें वो जो एग्रीगेट फंक्शन लिस्ट आ सकती है, और दिस लिस्ट विल ऑलवेज बी इन अ पेयर। और पेयर किस चीज का होगा, कौन सा एग्रीगेट फंक्शन लगाना है और किस एट्रीब्यूट के ऊपर लगाना है। तो अब पहली बात हमने लगाया कौन सा एग्रीगेट फंक्शन, काउंट का लगाया। क्यों? क्योंकि हमें नंबर चाहिए था कि कितनी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। दूसरी बात हमने किस चीज को काउंट कर रहे हैं, हम प्रॉपर्टी नंबर को काउंट कर रहे हैं, ठीक है जी, ताकि हमें पता चले ये इतनी प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, लेकिन उससे पहले हमने इसको देखें, हमने पैरेंथेसिस के अंदर एक और ऑपरेशन अप्लाई किया, और वो है सिलेक्शन का या रिस्ट्रिक्शन का। और सिलेक्शन या रिस्ट्रिक्शन के अंदर हमने क्या कंडीशन लगाई, हमने लगाया जी रेंट ग्रेटर देन 350। एक ज़हन में रखें कि हमने कहा था, हमसे पूछा गया था कॉस्ट मोर देन 350 पाउंड्स। हमसे ये नहीं कहा गया कि इक्वल टू और मोर देन नहीं कहा गया, हमें सिर्फ कहा गया ज्यादा इससे। तो इसलिए हमने सिलेक्शन में कंडीशन क्या लगाई, हमने कहा जी रेंट इज ग्रेटर देन 350, और ये किस रिलेशन के ऊपर लगाया, प्रॉपर्टी फॉर रेंट। तो इट मींस कितनी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी जिनकी कॉस्ट 350 से ज्यादा है। अब सपोज करें उसमें प्रॉपर्टी नंबर PG4 आ गया, PG36 आ गया एंड सो ऑन, इस तरह। तो वो जितनी टुपल्स आ गई अब उसने उसको काउंट कर लेना है प्रॉपर्टी नंबर के ऊपर। तो अगेन अब एक चीज ध्यान में रखें कि ये जो एग्रीगेट फंक्शन है हमेशा ये रिजल्ट कितना रिटर्न करेंगे, ये एक सिंगल रिजल्ट रिटर्न करेंगे। कि जब वो काउंट कर लेगा तो काउंट वो कितना कर लेगा, वो एक वैल्यू देगा ना। काउंट मतलब वो 10 प्रॉपर्टीज हैं तो वो 10 मतलब एक रो या एक टुपल वो रिटर्न करेगा, ठीक है। अब इसको हमने रीनेम कर दिया, और रीनेम में हमने क्या किया, उसको कहा रिलेशन R, और उस एट्रीब्यूट को जो वो वैल्यू में काउंट की फॉर्म में रिटर्न करेगा उसको हमने क्या कह दिया, उसको हमने माई काउंट कह दिया। आपको अगर याद हो तो ये वही वाली चीज़ है कि हमने जो है वो कैसे इस बेसिकली किसी भी एट्रीब्यूट को भी हम रीनेम कर सकते थे। तो इसका रिजल्ट अगर देखें तो माई काउंट की वैल्यू आएगी 5, और ऐसी 5 प्रॉपर्टीज हैं जिनकी कॉस्ट जो है वो 350 से ज्यादा। एक ही है जिसकी 350 है तो वो वाली इंक्लूड इसमें नहीं होगी, इसलिए उसने 5 रह गई और 5 कैलकुलेट कर ले, ठीक है। तो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ एग्रीगेट फंक्शन। अब इसी तरह सपोज अगर आपसे पूछा जाता है फाइंड मिनिमम मैक्सिमम एंड एवरेज स्टाफ सैलरी, ठीक है। तो इट्स वेरी सिंपल, एग्रीगेट फंक्शन लगाना है,
एग्रीगेट हमने ऑपरेशन लगाना है और फिर उसके अंदर हमने मुख्तलिफ फंक्शन भी लगाने। आप देखें एग्रीगेट का रिप्रेजेंट मतलब फिर अगेन वो जो लेफ्ट साइड पे सबसे पहले है वो आपका रीनेमिंग जो है वो यूज़ हुई है, रीनेम ऑपरेशन यूज़ हुआ है, उसको भूल जाएं। लेकिन अभी चलें, अब आपको क्लियर हो गया, तो हमने कहा जी रीनेम हमने किया, जो रिजल्ट आएगा उस रिलेशन को उसको हमने आर कह दिया, और उसको जो एट्रीब्यूट्स हैं और 3 एट्रीब्यूट्स आएंगे, तो क्योंकि हमने 3 वो जो है वो एग्रीगेट फंक्शन यूज़ किए हैं, तो उसको हमने माई मिन कह दिया, माई मैक्स कह दिया और माई एवरेज कह दिया। आप कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। उसके बाद एग्रीगेट फंक्शन लगाया। एग्रीगेट में आप देखें आपने बेस में फिर अगेन वो जो एग्रीगेट फंक्शन लिस्ट है एल, वो और एल हमने कहा था हमेशा इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स, और पेयर किस 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 चीज़ का होगा, पेयर हमेशा एग्रीगेट फंक्शन प्लस एट्रीब्यूट जिसके ऊपर, अब एट्रीब्यूट तो हम एक ही इस्तेमाल हो रहा है, सैलरी है, और सैलरी का ही हमने मिन भी निकालना है, मैक्स भी निकालना है और एवरेज भी निकालना है। तो आप देखें कि मिन स्पेस सैलरी कॉमा मैक्स स्पेस सैलरी कॉमा एवरेज स्पेस सैलरी, और ये किस रिलेशन में से आ रहा है, ये स्टाफ के रिलेशन में से आ रहा है। और अगेन जो एग्रीगेट फंक्शन है उनका रिजल्ट हमेशा एक सिंगल टपल होगी, कोई ग्रुप ऑफ वैल्यूज नहीं होगी, क्योंकि आप देखें हम कोई उस पर समेशन टाइप अप्लाई कर रहे हैं, कोई एक मतलब जैसे सम है, काउंट है, मिन है, मैक्स है, एवरेज है, इन सब का रिजल्ट जो है वो एक ही टुपल आएगा। तो इसलिए अगर आप देखें तो माई मिन में अगर स्टाफ के रिलेशन में सैलरीज को देखें तो ये मिनिमम सैलरी जो है वो 9000 है, ठीक है। ये रीनेमिंग हुई है, आपको नज़र आ रहा है, माई मिन कहा था हमने, जो मिन सैलरी को उसने फाइंड आउट किया, जो मैक्स ऑफ सैलरी को कैलकुलेट किया वो माई मैक्स है, और एवरेज सैलरी को माई एवरेज। और इसमें आप देख सकते हैं कि 9000, 30,000 इज द मैक्सिमम वन एंड 17,000 इज द एवरेज ऑफ ऑल द सैलरीज। एंड आई होप के यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट ऑपरेशन। इसमें अब एक और चीज़ आपको ये भी बताता चलूँ कि इसमें घबराने की इस हवाले से कोई बात नहीं है कि हमारे पास ये जो सारी चीज़ें हैं ये दोबारा रिपीट भी होंगी जब हम एसक्यूएल स्टडी कर रहे होंगे। तो एसक्यूएल के अंदर जो है इन चीज़ों को दोबारा जो है हम डिस्कस करेंगे बड़ी डिटेल के साथ। लेकिन अगर आपने यहाँ ये चीज़ें सीख ली तो फिर आपको एसक्यूएल के अंदर जो है इसको समझने में बहुत आसानी होगी। इसके बाद जो अगली चीज़ है दैट इज़ ग्रुपिंग ऑपरेशन। अब ग्रुपिंग को समझने के लिए ग्रुपिंग आप ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि ग्रुपिंग भी जो है वो एग्रीगेट ही होती है, लेकिन ये पर्टिकुलर ग्रुप्स के ऊपर एग्रीगेशन आप अप्लाई करते हो। अब देखें जैसे स्टाफ का हमारा रिलेशन था, स्टाफ के अंदर मसलन जैसे मैंने कहा जी आप एग्रीगेशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं कि आप जी सैलरी का सम आप निकाल लें, राइट। अच्छा, लेकिन आपने देखा होगा कुछ रिपोर्ट्स में आपके कुछ सब टोटल्स होते हैं। एक तो टोटल होता है ना पूरी रिपोर्ट का, एक होते हैं सब टोटल्स। अब सब टोटल्स किस तरह हो सकते हैं, मसलन फ़र्ज़ करें हम इसी की इंफॉर्मेशन, मसलन जो स्टाफ का रिलेशन है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि आपका जो ओनर है ड्रीम होम का, वो आके आपसे कहता है जी मुझे बताओ हम कितनी टोटल सैलरी पे कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, स्टाफ को। तो आप क्या कर सकते हो, आप सैलरी का जो है वो टोटल निकाल लो, राइट, सम निकाल लो, एग्रीगेशन अप्लाई कर दो। लेकिन उसका क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकता है। क्वेश्चन कैसे डिफरेंट हो सकता है, मसलन आपसे ये पूछे कि मुझे ब्रांच वाइज जो है बताओ कि हम कितना टोटल पे कर रहे हैं, तो अब ये आपकी ग्रुपिंग हो जाएगी। ग्रुपिंग क्या कि पहले आप हर ब्रांच के हवाले से टोटल्स कैलकुलेट करोगे कि कौन से जो ऐसा स्टाफ है जो ब्रांच B003 में काम करता है उनका एक ग्रुप बना लोगे, एक ग्रुप आप B002 ब्रांच का बना लोगे, एक आप B004 वाला भी। तो आपने बता दिया जी ग्रुपिंग किसके ऊपर हो रही है, ब्रांच के ऊपर। लेकिन उसके अंदर फिर आप क्या कर रहे हो, आप सम ऑफ सैलरी निकाल रहे हो। अच्छा, इसके अलावा एक और भी आप ग्रुपिंग कर सकते हो। अब ग्रुपिंग किसी भी ऐसी मतलब एट्रीब्यूट की वैल्यूज के ऊपर हो सकती है जो रिपीट हो रही है। तो मसलन हम स्टाफ के रिलेशन के अंदर देखें तो स्टाफ के रिलेशन में किस किस पे ग्रुपिंग हो सकती है। एक तो मैंने आपको ब्रांच बता दिया, ब्रांच नंबर के ऊपर कि जी जैसे बहुत सारे स्टाफ हैं वो एक ही ब्रांच नंबर में हो सकते हैं, जो लोग B003 में काम कर रहे हैं तो उनका एक ग्रुप बन गया। अच्छा, इसके अलावा आप ज़रा गौर करो किस पे ग्रुपिंग हो सकती है। अच्छा, गौर से अगर आप देखें तो उसमें आप देखेंगे कि जो आपका पोजीशन है, बहुत सारे लोगों की पोजीशन मैनेजर है,
तो आप का जो ओनर है वो आपसे ये भी मतलब आपको कह सकता है कि मुझे बताओ कि जी मैनेजर्स को कितनी मैं टोटल सैलरी पे कर रहा हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ के वो किस ब्रांच में है, मैं असिस्टेंट्स को कितनी कर रहा हूँ, सुपरवाइजर का सैलरी का सम मुझे निकाल के दो। तो आप देख सकते हैं कि ये भी एट्रीब्यूट की वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, तो इन पे भी मैं ग्रुपिंग कर सकता हूँ। अच्छा, एक और जो ग्रुपिंग है वो जो हम कर सकते हैं वो हम जेंडर या इसमें जो हमारा एक एट्रीब्यूट है सेक्स का, उसके ऊपर कर सकते हैं। तो वो मेल और फीमेल के ऊपर, तो मैं मेल के ऊपर और फीमेल के, तो आपका ओनर जो है वो ये भी पूछ सकता है कि हाँ जी मेल को कितना सैलरी का सम है और फीमेल की सैलरी का सम कितना है, एंड सो ऑन। कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी जो है मसलन जैसे डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, एंड सो ऑन, मतलब आपके इस किस्म की तमाम सिचुएशंस जहाँ पे आपकी कोई भी एट्रीब्यूट की वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, उन पे आप ग्रुपिंग कर सकते हो और फिर उन ग्रुप्स के टोटल्स या सब टोटल्स आप निकाल सकते हो। और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ग्रुपिंग ऑपरेशन कहते हैं। अच्छा, ग्रुपिंग ऑपरेशन इज ऑलमोस्ट, मैंने जैसे बताया कि काम इसमें भी एग्रीगेशन ही अप्लाई करनी है, लेकिन आप ग्रुप्स के ऊपर अप्लाई करनी है, नॉट ऑन द होल रिलेशन, ठीक है। तो हम ग्रुप वाइज अब करेंगे। तो इसमें एक चीज़ ऐड हो जाती है, अगर आप अपने स्लाइड्स पे देखें तो इसमें आपका GA है और जो आपका और बाकी वही वाला एग्रीगेशन का आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, AL है एग्रीगेट फंक्शन लिस्ट है, और फिर R आपका रिलेशन है जिसके ऊपर आप जो है वो एग्रीगेशन अप्लाई कर रहे हो। तो अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो इट ग्रुप्स द टुपल्स ऑफ रिलेशन R बाय द ग्रुपिंग एट्रीब्यूट्स। GA आपके वो ग्रुपिंग एट्रीब्यूट है जिसके ऊपर आप बताओगे, इधर आप डिफाइन करोगे कि किस बेस पे आपने ग्रुपिंग करनी है, राइट, एंड देन अप्लाइज द एग्रीगेट फंक्शन लिस्ट AL टू डिफाइन अ न्यू रिलेशन। और आपको पहले भी जैसे मैंने डिस्कस किया, एग्रीगेट फंक्शन लिस्ट विल ऑलवेज बी इन अ पेयर, और वो पेयर क्या होता है, एग्रीगेट फंक्शन का। और एग्रीगेट फंक्शन हमने डिस्कस किए, मेन हमारे पास 5 किस्म के एग्रीगेट फंक्शन है, काउंट है, सम है, मिन है, मैक्स है और एवरेज है। अब जो रिजल्टिंग रिलेशन होगा इट विल कंटेन द ग्रुपिंग एट्रीब्यूट्स। अब ग्रुपिंग एट्रीब्यूट जो भी, वो एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं, ठीक है, along with the results of each the aggregate functions। अब इसका रिजल्ट जो होगा रिलेशन का वो एक टुपल नहीं होगा, अब उसमें जितने पॉसिबल ग्रुप्स बनते हैं, मसलन अगर हम ब्रांच के ऊपर ग्रुपिंग कर रहे थे तो अब जितनी डिफरेंट ब्रांचेस हैं हर एक उतनी टुपल्स आपकी इसकी बनेगी, और फिर उस हर एक का एक टोटल बनेगा, या एग्रीगेट फंक्शन वाला उसके ऊपर अप्लाई होगा। अगर हम पोजीशन के ऊपर कर रहे थे तो जितनी डिफरेंट पोजीशंस हैं, जैसे मैनेजर है, असिस्टेंट है, सुपरवाइजर है, एंड सो ऑन, जो भी आपकी हैं वो सारी उसमें नजर आएंगी। तो मतलब उसकी टुपल्स एक नहीं होंगी जैसे सिर्फ एग्रीगेट के अंदर हम देख रहे थे, ठीक है। तो मतलब जितनी भी ग्रुप्स की पॉसिबिलिटीज बनती हैं वो सारी टुपल्स जो हैं वो आपकी उसके नजर आएंगी, और फिर उसके अगेंस्ट जो है आपका जो एग्रीगेट फंक्शन है वो आप उसके अंदर देखोगे। अगेन एग्जाम्पल को जब देखेंगे तो इट वुड बिकम वेरी क्लियर, राइट। Okay, suppose you are asked find the number of staff working in each branch, right? Find the number of staff। अच्छा, एक बात अब आपने जहन में रखनी है, जब भी चाहे कोई रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन है या स्केल की क्यूरी है, you need to basically concentrate on the wording, right? आपने बड़ी क्रिटिकली इसको एनालाइज करना है कि ये क्या पूछा जा रहा है हमसे। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टाफ, व्हाट डज इट मीन, काउंट की बात हो रही है कि आपने उस काउंट करना है स्टाफ को। वर्किंग इन ईच ब्रांच, अब ये जो ईच ब्रांच का लफ्ज आ गया ना, मींस कि आपने हर ब्रांच के हवाले से बताना है कि उसमें कितने लोग काम करते हैं। तो ये हमें इंडिकेशन देगा कि ये ग्रुपिंग यहाँ पे इन्वॉल्व है, ग्रुपिंग के बगैर हमारा मसला हल नहीं होना। एंड द सम ऑफ देयर सैलरीज, तो क्वेश्चन को समझना सबसे पहला स्टेप होता है, ये आप हमेशा जहन में रखें। एक मतलब ये हमेशा मैं जब भी अपने स्टूडेंट्स को मतलब जब लेक्चर उनको दे रहा होता हूँ तो उसमें हमेशा मैं उनको ये बताता हूँ कि जो सबसे मुश्किल मरहला है वो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग है, और दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स बेसिकली द सोल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम और क्वेश्चन। तो क्वेश्चन समझ ही नहीं आता तो आंसर तो देना दूर की बात है ना, तो वो तो मुश्किल हो जाएगा। अगर क्वेश्चन ही नहीं समझ आता तो क्वेश्चन समझ आता है तो फिर आप देखते हो हाँ जी कौन कौन से पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, और पॉसिबल सॉल्यूशंस में से जो बेस्ट सूटेबल होगा वो आप जो है वो डिफाइन करोगे। लेकिन
मतलब अगेन जो पहला स्टेप है दैट इज़ टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। और हमेशा डेटाबेस के अंदर तो मतलब क्यूरीज़ के हवाले से भी, रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशंस के हवाले से भी, और ख़ास तौर पे जब आप डेटाबेस डिज़ाइन की बात करोगे तो मतलब इन सब में सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होगी कि आप उस सिस्टम को समझो, आप उस क्यूरी को समझो, ठीक है। तो अगर आपको वो समझ आ जाती है तो देन इट्स नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल टू आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। अच्छा, बड़ा क्लियर हो गया जी मुझे कि मैंने ग्रुपिंग करनी है किस पे, ब्रांच के बेस के ऊपर, ठीक है। और फिर मैंने दो चीज़ें निकालनी है, जो एग्रीगेट फंक्शंस है दो मुझे चाहिए। एक मुझे उसका काउंट निकालना है, और काउंट मुझे बड़ा क्लियर है जी कि मैं स्टाफ नंबर के ऊपर निकाल सकता हूँ, ठीक है, कि स्टाफ को मैं काउंट कर लूँ, ठीक है। दूसरी बात मैं क्या कर सकता हूँ कि मुझे पूछा गया सम ऑफ देयर सैलरीज भी निकालो, तो मुझे सैलरी के ऊपर जो है वो सम में अप्लाई कर दूँ सैलरी एट्रीब्यूट के ऊपर, तो आई वुड गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स। अब अगेन ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे बिफोर दी मतलब ग्रुपिंग एट्रीब्यूट और जो एग्रीगेशन से पहले जो है ये आपका रीनेम ऑपरेशन यूज हुआ है, और इस रीनेम ऑपरेशन में जो आर हमारा रिजल्टेंट रिलेशन है जो आएगा, और ब्रांच नंबर उसको पहले एट्रीब्यूट को मैं नाम दे रहा हूँ माई काउंट, जो मेरा काउंट का फंक्शन अप्लाई होगा उसका जो रिजल्ट आएगा वो इसके अंदर आएगा, और माई सम जो है वो जो सैलरीज का सम मैं हर ब्रांच के लिए निकालूंगा वो माई सम से उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आगे आप देखें तो जो पहली फील्ड आपको नजर आ रही है वो है ब्रांच नंबर की, और ये आपको नजर आ रहा है कि वो जो एग्रीगेट फंक्शन से पहले हम ग्रुपिंग एट्रीब्यूट की बात करते थे, तो हम ग्रुपिंग किसके ऊपर कर रहे हैं, ब्रांच नंबर के ऊपर कर रहे हैं। तो पहले वो ब्रांच नंबर के हवाले से वो जो है वो ग्रुपिंग करेगा, ठीक है जी। अच्छा, फिर हर जो ग्रुपिंग है हर ब्रांच नंबर के लिए वो क्या करेगा, काउंट करेगा स्टाफ नंबर को, ठीक है। तो स्टाफ नंबर को उसने काउंट कर लिया, कितना स्टाफ है उस पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर, इसी तरह उन सब स्टाफ की सैलरीज का सम निकाल लेगा, एंड फाइनली हम पैरेंथेसिस के अंदर वो रिलेशन देते हैं जिसके ऊपर हम ये अप्लाई कर रहे हैं। तो आई होप कि इट्स नॉट डिफिकल्ट। लेट्स लुक एट द रिजल्ट नाउ, ठीक है जी। तो ये हमारी जो क्यूरी हमसे पूछी गई थी उसका रिलेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने लगा दिया। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा अभी आप देखें। ओके, तीन एट्रीब्यूट्स, और एट्रीब्यूट वही वाले जो रीनेमिंग में हमने नेमिंग दी थी, वही वाले नाम B003, उसके अंदर जो एम्प्लॉइज़ की तादाद है वो 3 है। अब अगेन मतलब आप अपने सामने अगर स्टाफ का रिलेशन रखें ना, आपको बड़ी आसानी से ये रिजल्ट्स वेरीफाई करने में जो है आपको बड़ी आसानी हो जाएगी कि ये वाकई वही रिजल्ट्स आ रहे हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस स्टाफ रिलेशन के अंदर। तो आप देखेंगे कि ब्रांच नंबर B003 में 3 एम्प्लॉइज़ काम करते हैं और उनकी सैलरीज का तीनों का टोटल लें तो वो 54,000 बनता है। इसी तरह ब्रांच B005 के अंदर 2 एम्प्लॉइज़ हैं और 39,000 उनकी सैलरी का सम बनता है। B007 के अंदर 1 एम्प्लॉय है और उसका सैलरी का जो सम है वो 9,000, क्योंकि वो है ही एक तो 9,000 ही बनेगा। अब आप ऐसी मतलब सिचुएशन मतलब मुख्तलिफ सिचुएशंस के लिए इसी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। मसलन आप पूछ सकते हो जी फाइंड द नंबर ऑफ स्टाफ वर्किंग फॉर ईच पोजीशन एंड सम ऑफ देयर सैलरीज, कि जी मतलब जो एक ख़ास पोजीशन के लिए काम कर रहा है, मसलन मैनेजर को अलग कर ले, उनकी सैलरीज का सम बताए, असिस्टेंट्स कितने हैं उनकी सैलरीज का सम बताए, एंड सो ऑन। इसी तरह जेंडर के ऊपर भी आप कर सकते हो, मेल और फीमेल के ऊपर। तो आप इस तरह बेसिकली इस एग्रीगेशन और ग्रुपिंग को आप इकट्ठा यूज़ कर सकते हो। तो आई होप कि अभी ये काफ़ी है इतना। इंशाल्लाह एसक्यूएल के अंदर जब हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे तो आपको होपफुली अगर कोई चीज़ रह भी गई है तो वो कवर हो जाएगी। ओके, अब इसके साथ ही हमारा रिलेशनल अलजेब्रा का जो पोर्शन है दैट इज़ फिनिश्ड। अब हम मूव करेंगे रिलेशनल कैलकुलस की तरफ। रिलेशनल अलजेब्रा जैसे हमने कहा कि रिलेशनल अलजेब्रा और रिलेशनल कैलकुलस दोनों जो है फॉर्मल थ्योरेटिकल लैंग्वेजेस हैं, और हमने कहा जी रिलेशनल अलजेब्रा जो है वो प्रोसीजरल लैंग्वेज है जो कि डिफाइन करती है कि कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, जबकि जो रिलेशनल कैलकुलस है वो नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है। उसमें हम जस्ट बताते हैं कि हमें क्या चाहिए, ना कि हम ये बताते हैं हाउ टू रिट्रीव दैट। अब
हमने ये भी कहा था कि हर जो चीज़ रिलेशनल अलजेब्रा में जो एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है दैट कुड बी रिटन इन यूजिंग रिलेशनल कैलकुलस, या रिलेशनल कैलकुलस में जो लिखा जा सकता है वो रिलेशनल अलजेब्रा। फिर हमने कहा जी ये दोनों जो हैं ये फाउंडेशन है एसक्यूएल के लिए। मतलब ये भी एक अब कंट्रोवर्सी है कि मतलब आज कहते हैं जी कि रिलेशनल अलजेब्रा जो है एसक्यूएल उसके ऊपर बेस करती है, कुछ कहते हैं रिलेशनल कैलकुलस के ऊपर करती है, कुछ कहते हैं दोनों के ऊपर करती है, लेकिन हमें इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने सिर्फ इनको सीखना चाहेंगे कि कैसे बेसिकली ये, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो रिलेशनल डाटा बेसिस के हवाले से या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के हवाले से थोड़ी ज़्यादा बेहतर हो जाए। तो रिलेशनल अलजेब्रा हमने बड़ी डिटेल के साथ कवर किया। रिलेशनल कैलकुलस को भी मैं टच करूँगा, लेकिन आई वुड गो थ्रू इट वेरी क्विकली। मतलब मैं जस्ट आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा और थोड़ी सी एग्जांपल्स दिखाऊंगा, क्योंकि ये एडवांस्ड टॉपिक्स में आता है और आई थिंक कि ये आपका जो है ये पहला इंट्रोडक्टरी कोर्स है डेटाबेस सिस्टम्स का। तो आई वुड नॉट गो इनटू द डिटेल्स, क्योंकि मोस्टली ये ज़्यादा फिर इसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है और हम उसके ऊपर हमारा कंसर्न जो है वो ज़्यादा जो फोकस होगा वो हमारा एसक्यूएल के ऊपर होगा, जो कि एक्चुअली हम यूज़ करेंगे, क्योंकि ना रिलेशनल अलजेब्रा का एक्चुअली हमारी प्रैक्टिकली यूज़ होना है, ना रिलेशनल कैलकुलस का यूज़ होना है। हमारा जो एक्चुअल जो इंट्रैक्शन के लिए हम यूज़ करेंगे वो हम एसक्यूएल यूज़ करेंगे। लेकिन मतलब इन चीज़ों से आपको थोड़ी सी उसकी अंडरस्टैंडिंग में जो है वो बेहतरी होगी, आपको क्लियर होगा कि बेसिकली एक तो आपको वो जो रिलेशन था कि किस तरह रिलेशनल मॉडल जो है वो रिलेशनल थ्योरी जो आपकी सेट थ्योरी है या मैथमेटिक्स के साथ उसका कैसे उस पोर्शन के साथ इसका कनेक्शन है, तो थोड़ा सा आपको उस चीज़ को मतलब जस्टिफाई करने में जो है वो आसानी होगी। रिलेशनल कैलकुलस के हवाले से बात करें तो रिलेशनल कैलकुलस स्पेसिफाइज, मतलब द कंसर्न इज आर द फोकस इज व्हाट इज टू बी रिट्रीव रादर देन हाउ टू रिट्रीव इट। अब जो रिलेशनल कैलकुलस है दैट इज बेसिकली बेस्ड अपॉन फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, या जो इसको प्रेडिकेट कैलकुलस भी कहते हैं। और प्रेडिकेट इज अ ट्रुथ वैल्यूड फंक्शन विद सम आर्गुमेंट्स। मसलन कोई एक आर्गुमेंट क्या हो सकता है कि सपोज someone is a member of staff, someone को हम ले लेते हैं, फर्ज करें x is a member of staff, और एक जनरल ट्रुथ वैल्यूड फंक्शन हम ले लेते हैं। अब ट्रुथ वैल्यूड फंक्शन के अंदर जब हम कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो इट माइट बी ट्रू और इट माइट बी फॉल्स फॉर दैट पर्टिकुलर वैल्यू। अब प्रेडिकेट मैंने जैसे डिस्कस किया, प्रेडिकेट एक इम्पॉर्टेंट है, उधर भी हमने रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर भी डिस्कस किया था, इधर भी डिस्कस कर रहे हैं। तो उधर प्रेडिकेट तो वो कंडीशन थी, इधर प्रेडिकेट इज रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ अ ट्रुथ वैल्यूड फंक्शन, राइट। तो ट्रुथ वैल्यूड फंक्शन विच माइट हैव सर्टेन आर्गूमेंट्स, और उस आर्गूमेंट में जब हम कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं एक्चुअल, तो देन इट बिकम्स अ प्रोपोजिशन। तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोपोजिशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे फर्ज करें या इसको डिफाइन करना चाहें, व्हेन वी सब्स्टिट्यूट वैल्यूज फॉर द आर्गुमेंट्स, फंक्शन वो जो ट्रुथ वैल्यूड फंक्शन है, देन इट यील्ड्स एन एक्सप्रेशन, वो एक एक्सप्रेशन यील्ड करता है, दैट इज कॉल्ड अ प्रोपोजिशन व्हिच कैन आइदर बी ट्रू और फॉल्स, डिपेंड्स, राइट। अच्छा, मसलन फर्ज करें जो अभी थोड़ी देर पहले मैं ट्रुथ वैल्यू फंक्शन या प्रेडिकेट की बात कर रहा था, मैंने कहा जी सपोज एक्स इज अ मेंबर ऑफ स्टाफ। मैं एक्स के अंदर वैल्यू रिप्लेस करता हूँ और एक्स में मैं वैल्यू देता हूँ जॉन वाइट, राइट। तो जॉन वाइट इज अ मेंबर ऑफ स्टाफ, ट्रू। अगर मैं स्टाफ के रिलेशन को देखूं, स्टाफ में जॉन वाइट है, तो जॉन वाइट इज अ मेंबर ऑफ स्टाफ, सो दिस ट्रिपल विल रिटर्न ट्रू। तो हम मतलब इसी तरह का हम जो है वो सिचुएशन, इसी किस्म के ट्रुथ वैल्यूड फंक्शन जो है हम बेसिकली रिलेशनल कैलकुलस के अंदर यूज करेंगे। ओके, एक और चीज जो आपको क्लियर होनी चाहिए, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की हम बात कर रहे हैं। हमने बात की पहले, हमने बात की कि जी जो हमारा रिलेशनल कैलकुलस है दैट इज बेस्ड अपॉन व्हाट, नॉट हाउ। बेसिकली कि क्या डाटा चाहिए, वी आर नॉट इंटरेस्टेड कि हाउ टू रिट्रीव दैट पर्टिकुलर डाटा। दूसरी बात हमने की कि इसमें ट्रुथ वैल्यूड वो प्रेडिकेट होता है, ट्रुथ वैल्यूड फंक्शन होते हैं विच कुड आइदर बी ट्रू और फॉल्स। फिर हमने प्रोपोजिशन की बात की। प्रोपोजिशन
जो है वी सेड कि जी प्रोपोजिशन कि जी व्हेन वी बेसिकली सब्स्टिट्यूट वैल्यूज फॉर दैट आर्गुमेंट, तो then it yields an expression, and then that is called a proposition, and proposition could be either false or true, depends. ठीक है जी. एक और जो कॉन्सेप्ट हमें समझना जरूरी है वो है रेंज की. ठीक है जी. If suppose predicate contains a variable, for example x is a member of staff, जैसे मैंने अभी आपसे बात भी की थी, there must be a range for x. तो x की रेंज क्या होगी? तो रेंज से मुराद मैथमेटिक्स वाली रेंज नहीं है यहाँ पे. रेंज से मुराद डोमेन है, और डोमेन आई होप कि आपको याद होगा, हमने पिछले हमारे लेक्चर्स में हमने डोमेन को कवर किया था. और डोमेन क्या होती है? डोमेन इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज फॉर दैट पर्टिकुलर एट्रीब्यूट. तो मतलब रेंज से मुराद वही है कि इस की क्या क्या सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं. तो मसलन हम चेक कर रहे हैं एक्स इज अ मेंबर ऑफ स्टाफ, तो एक्स से मुराद क्या है? इट मीन्स कि जी नेम्स की बात कर रहे हैं, तो नेम्स से मुराद नेम्स किन के होते हैं? people, right? So set of all people, तो मतलब जो तमाम लोग पॉसिबल हो सकते हैं, मीन्स के जो set of all possible names हैं वो हमारे. ठीक है. तो अब जब हम उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो जो प्रोपोजिशन बनेगी, उस प्रोपोजिशन को हम जो है वो कह सकते हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स है, डिपेंडिंग अपॉन आवर रिलेशन के इंस्टेंस के ऊपर हम बात करें तो. ओके. अब मसलन फर्ज करो अगर आप जॉन वाइट इसमें प्लेस करो, सब्स्टिट्यूट करो, तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाता है? ये प्रोपोजिशन हमारी होती है जॉन वाइट इज अ मेंबर ऑफ स्टाफ. यस, ट्रू. अगर आप अपने उस डेटा के अंदर देखें तो जॉन वाइट हमारा एक स्टाफ मेंबर है. लेकिन अगर मैं पीटर नॉर्टन करूं तो पीटर नॉर्टन इज नॉट अवेलेबल इन दैट पर्टिकुलर रिलेशन, या उस इंस्टेंस के अंदर उस टाइम पे मौजूद नहीं है. सो इट विल बिकम फॉल्स. तो मतलब अब ये वाली टुपल जो अगर हम जॉन वाइट के साथ होगी तो वो उसको सेटिस्फाई करेगी, तो वो सिलेक्ट हो जाएगी, और जो उस ट्रुथ वैलिड फंक्शन प्रेडिकेट को सेटिस्फाई नहीं करेगी वो वाली जो है वो फॉल्स हो जाएगी. If P is a predicate, then we can write the set of all x such that P is true for x, और इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है x such that P of x, और करली ब्रेसेस के अंदर इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है. तो मतलब ये एक रिप्रेजेंटेशन है जो हम यूज़ कर सकते हैं. लॉजिकल कनेक्टिविटीज़ जैसे हम रिलेशनल अलजेब्रा में यूज़ करते थे एंड, और एंड नॉट, मतलब टू फॉर्म द कंपाउंड और कम्प्लेक्स. बेसिकली आपने रिलेशनल कैलकुलस लिखनी है तो उसके लिए आप इनको यूज़ कर सकते हैं, जैसे उधर यूज़ किया था. एग्जैक्टली वही वाले मीनिंग्स इनके इधर भी. एंड की सूरत में दोनों का मस्ट है कि वो दोनों कंडीशंस ट्रू हों, और के केस में कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो ट्रू आपका रिजल्ट आएगा, और नॉट आपको पता है कि अगर ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा, और फॉल्स है तो अपोजिट में उसका रिजल्ट कर देता है कि अगर ट्रू है तो फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स है तो वो नॉट लगाएंगे तो वो ट्रू बन जाएगा. ठीक है. ओके. in what forms the relational calculus is available, right? We will basically go through two different forms. एक हमारी tuple relational calculus है और एक हमारी domain relational calculus है. जो tuple relational calculus है ये basically coord नहीं 1970s में 72 में I think जो है वो उस टाइम प्रपोज किया था, और फिर इसमें बाद में कुछ एडिशंस की गई. पेट्री, अगर मैं नाम गलत ले रहा हूँ, और एक और उनके साथ साहब थे 1977 या 78 के अंदर डोमेन रिलेशनल कैलकुलस उन्होंने की थी. अब हम देखते हैं कि ये दोनों ही टाइप्स हैं रिलेशनल कैलकुलस की, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है कुछ कॉन्सेप्ट में. वो क्या है? जो ट्रिपल रिलेशनल कैलकुलस है दैट बेसिकली रेंज ओवर टुपल्स इन अ रिलेशन के, उस वो टुपल के ऊपर, पूरी की पूरी टुपल के ऊपर बात करती है. जबकि डोमेन रिलेशनल कैलकुलस जो है इट आल्सो यूजेस वेरिएबल, बट दीज वेरिएबल टेक देयर वैल्यूज फ्रॉम द डोमेन्स ऑफ द एट्रीब्यूट्स रादर देन द टुपल्स ऑफ द रिलेशंस. तो मतलब ये इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स के ऊपर, और फिर वो एट्रीब्यूट जो है मैप होते हैं वो डोमेन्स के ऊपर. तो ये डोमेन रिलेशनल कैलकुलस इस तरह काम करती है. लेकिन जैसे मैंने बताया कि हम इसकी बहुत ज़्यादा इन डेप्थ डिटेल में नहीं जाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम जल्दी जल्दी इसको क्विकली गो थ्रू कर लें, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि इसमें भी कैसे जो है वो वही वाले सेम एक्सप्रेशंस कैसे इसमें लिखे जाते हैं. ओके, अब हम वन बाय वन टुपल रिलेशनल कैलकुलस को पहले देख लेते हैं. सपोज इफ वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग टुपल्स फॉर विच अ प्रेडिकेट इज ट्रू, तो
it is based on basically जो tuple relational calculus है that is based upon tuple variables, और tuple variable is a variable that ranges over a named relation. Definitely there will be a relation involved, variable whose only permitted values are tuples of the relation. तो ये जो tuple variable है that उसकी परमिटेड वैल्यू कौन सी होंगी, जो उस रिलेशन के अंदर मौजूद है, उन्हीं में से कोई टुपल उसको असाइन हो सकती है, उसके अलावा रिलेशन के बाहर से कोई टुपल तो डेफिनेटली उसको असाइन नहीं हो सकती. स्पेसिफाई रेंज ऑफ अ टुपल वेरिएबल एस एज द स्टाफ रिलेशन. अगर ये आप मतलब लिखना चाहें तो आप कैसे लिख सकते हैं, स्टाफ और ब्रैकेट में एस. तो एस विल बी दी बेसिकली आपका जो वो टुपल वेरिएबल होगा, और अगर आप इसके लिए वो लिखना चाहें टू फाइंड सेट ऑफ ऑल टुपल्स एस सच दैट पी एस इज ट्रू, तो आप लिखोगे एस सच दैट पी ऑफ एस, और इसको करली ब्रेसेस में, जैसे हमने प्रेडिकेट वो जो पहले रिलेशनल कैलकुलस में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इसको कैसे डिफाइन करते हैं. ओके, लेट्स लुक एट एन एग्जांपल ताकि आपको क्लियर हो कि हम क्या बात कर रहे हैं. सपोज यू आर आस्क्ड कि जी फाइंड डिटेल ऑफ ऑल स्टाफ अर्निंग मोर देन 10,000 पाउंड्स. तो हमने कहा एस सच दैट स्टाफ ऑफ एस, कि जो स्टाफ एस जो है वो स्टाफ के ऊपर रेंज करता है, या इसकी जो वैल्यू आएगी वो स्टाफ के टुपल में से ही आएगी, एंड एस डॉट सैलरी इज ग्रेटर देन 10,000, उसको करली ब्रेसेस में. तो इसमें अब हमें वो वाली टुपल्स ही सिर्फ आपको बेसिकली इसके रिजल्ट के तौर पे मिलेंगी जो इस प्रेडिकेट को ये ट्रू होंगी. तो पहली बात है जो भी टुपल होगी, पहली बात है वो स्टाफ के रिलेशन के अंदर होनी चाहिए, और दूसरी बात उसकी ये है कि उसके जो सैलरी का एट्रीब्यूट है दैट शुड बी, उसके अंदर जो वैल्यू होनी चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन 10,000. इसी तरह टू फाइंड अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट सच एज सैलरी. अच्छा, इसका जो रिजल्ट आएगा इसमें तमाम एट्रीब्यूट्स आएंगे, लेकिन अगर आप स्पेसिफिक एक एट्रीब्यूट अगर देखना चाहें तो आप एस डॉट सैलरी कह रहे हैं, तो अब इट मीन्स यू आर इंटरेस्टेड ओनली इन अ सिंगल एट्रीब्यूट. ठीक है, और बाकी कंडीशन आपकी वही है. और ये एट्रीब्यूट कहाँ से आएगा, ये उस पर्टिकुलर टुपल का एक एट्रीब्यूट होगा स्टाफ एस, उसी स्टाफ के रिलेशन में से, और एस डॉट सैलरी एंड एस डॉट सैलरी इज ग्रेटर देन 10,000, राइट. अब इसके अंदर हमारे क्वांटिफायर्स भी इस्तेमाल हो सकते हैं. क्वांटिफायर्स हमें ये बताते हैं कि ये जो आपका प्रेडिकेट है ये कितनी इंस्टेंसेस ऑफ जो है वो ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रुथ वैल्यू फंक्शन या उस स्टाफ के कितने इंस्टेंसेस के साथ जो है वो बेसिकली अप्लाई होता है. तो हमारे पास दो तरह के क्वांटिफायर्स हैं. एक हमारे पास एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है जिसको आप इसकी रिप्रेजेंटेशन सिंबॉलिक देख सकते हैं, और इसको अगर वर्ड्स एक्सप्लेन करना चाहें तो इट मींस देयर एग्जिस्ट्स. और एक यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, आप ए को अपोजिट कर लें, इसकी डायरेक्शन चेंज कर दें फॉर ऑल के लिए. तो अभी हम इनको डिफाइन करते हैं कि ये क्या होते हैं. एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर क्या होता है और यूनिवर्सल क्वांटिफायर, तो मतलब ये भी आपके रिलेशनल कैलकुलस के अंदर यूज होते हैं. लेकिन जैसे मैंने बताया कि इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन हम बेसिक्स इनके कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे. फिर इसी तरह कुछ हमारे पास बाउंड वेरिएबल्स होते हैं और कुछ फ्री वेरिएबल्स होते हैं. टुपल वेरिएबल्स क्वालिफाइड बाय जो हमारे क्वांटिफायर्स हैं, अगर कोई भी ऐसा वेरिएबल जिसमें क्वांटिफायर आ जाए तो वो वाले हमारे जो आपके वेरिएबल्स हैं वो आपके बाउंड वेरिएबल्स कहलाते हैं. और जहां पे हमारे पास वेरिएबल्स के साथ ये क्वांटिफायर्स ना आए वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो आपके फ्री वेरिएबल्स कहलाते हैं. तो आपको ये दो डिफरेंट किस्म के वेरिएबल्स का पता होना चाहिए. एक हमारे बाउंड वेरिएबल्स हैं और एक हमारे जो है वो फ्री वेरिएबल्स हैं. तो जिन के साथ वेरिएबल्स के साथ क्वांटिफायर आ जाता है वो हमारे बाउंड वेरिएबल्स कहलाते हैं. ओके, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर की अगर बात करें तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर इसको वर्ड्स में एक्सप्रेस करें तो देयर एग्जिस्ट्स, मतलब ये हम इसको कहते हैं, और इज यूज्ड इन अ फार्मूला और फार्मूला दैट मस्ट बी ट्रू फॉर एटलीस्ट वन इंस्टेंस. मींस के जी किसी एक इंस्टेंस के लिए इसकी वैल्यू ट्रू होनी चाहिए. तो हम मसलन कह सकते हैं जी के स्टाफ एस और एंड और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर बी हमने यूज किया ब्रांच बी के लिए, ब्रांच के लिए है, और हमने कहा ब्रांच बी एंड बी डॉट ब्रांच नंबर इज इक्वल टू एस डॉट ब्रांच नंबर के स्टाफ का ब्रांच और बी का ब्रांच इक्वल हो,
एंड बी डॉट सिटी इज इक्वल टू लंदन। तो इसको हम अगर समझना चाहें इस ये रिलेशनल कैलकुलस के एक एक्सप्रेशन को, जो कि इन द फॉर्म ऑफ जो है टुपल रिलेशनल कैलकुलस हमें लिखा गया है, तो इसको हम एक्सप्रेस करना चाहें तो व्हाट वी कैन से कि जी देयर एग्जिस्ट अ ब्रांच टुपल, क्योंकि देखें जो क्वांटिफायर आया वो किसके साथ आया, ब्रांच के साथ आया, तो इट मींस कि देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन ब्रांच टुपल दैट हैज द सेम ब्रांच नंबर as the branch number of the current staff tuple S and is located in London। तो अब मतलब इस एक्सप्रेशन को अगर आप समझना चाहें तो अब या ये मसलन किस सिचुएशन के लिए था कि हमें वो तमाम स्टाफ का जो है वो बताओ जो लंदन वाली ब्रांच में काम करते हैं, ठीक है। तो मतलब ये बेसिकली इसको आप अगर देखना चाहो तो इस तरह आप इसको लिख सकते हो। इस तरह यूनिवर्सल क्वांटिफायर जो होता है इट इज बेसिकली फॉर ऑल एंड बेसिकली इट इज अ स्टेटमेंट अबाउट एवरी इंस्टेंस। और हम कहते हैं जी फर्ज करें मसलन हमें तमाम जो ब्रांच बी फॉर ब्रांच वेयर बी डॉट सिटी इज नॉट इक्वल टू पेरिस। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि जी फॉर ऑल ब्रांच टुपल्स द एड्रेस इज नॉट पेरिस। तो मुझे मतलब ऐसी तमाम ब्रांचेस दिखाओ जिसका सिटी पेरिस नहीं है, तो इट मींस हमारे जो अभी इंस्टेंस दी हुई है उसमें कोई भी जो है वो सिटी पेरिस नहीं है, तो इट मींस जितनी ब्रांचेस हैं वो सारी वो सिलेक्ट हो जाएंगी क्योंकि पेरिस तो उसमें नहीं है। या इसको आप अगर लिखना चाहो तो इसको इन रिवर्स में भी लिख सकते हो कि जी आप नॉट लगा दो, नॉट, लेकिन अब आप देखें कि आपने उस ऑल को रिप्लेस कर दिया जो है वो आपने एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर से कि जी एटलीस्ट कोई भी एक इंस्टेंस नहीं है जहां पे सिटी जो हो वो पेरिस हो, ठीक है। तो देयर आर नो ब्रांचेस विद एन एड्रेस इन पेरिस। तो मतलब इसको आप इस तरह भी पढ़ सकते हो कि जी ऊपर वाला जब हमने यूनिवर्सल यूज किया था तो हमने कहा फॉर ऑल ब्रांच टुपल्स द एड्रेस इज नॉट पेरिस, एंड अगर इस तरह लिखोगे कि देयर आर नो ब्रांचेस विद एन एड्रेस इन पेरिस। एक्सप्रेशंस और फार्मूला ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और अब पहली बात याद रखें कि जो रिलेशन जिस तरह मतलब हमारे सेंटेंसेस होते हैं, अब सेंटेंसेस को अगर हम प्रॉपर कोई उनका सीक्वेंस फॉलो ना करें तो उनकी बाज़ औक़ात वो एक सेंस नहीं बनती, लॉजिकल सेंस। एग्जैक्टली इसी तरह हमारे जो फार्मूला हैं अगर उसके अंदर जो एक्सप्रेशंस हम लिख रहे हैं वो प्रॉपर सीक्वेंस में ना हो तो बाज़ औक़ात उनकी सेंस नहीं बनेगी। तो इट शुड बी वेरी क्लियर कि जी फार्मूला शुड बी अनएम्बिगुअस एंड मेक सेंस। अदरवाइज मतलब बाज़ औक़ात हम अगर कोई उल्टा सीधा लिख भी देते हैं तो हो सकता है उसका फिर वो सेंस ना बन रही हो। एन एक्सप्रेशन इन द ट्रिपल रिलेशनल कैलकुलस हैज द फॉलोइंग जनरल फॉर्म S1.A1 S2.A2 and up till such that f S1, S2, Sm or m is greater than or equal to n, where S1, S2, Sn and till Sm are tuple variables, जो भी आपके टुपल वेरिएबल्स हैं। ईच ai is an attribute of the relation over which si ranges and f is the फार्मूला, जो भी आपका फार्मूला आप उस रिलेशनल कैलकुलस के अंदर आप डिफाइन करना चाहें। एक वेल फॉर्म फार्मूला क्या होता है? A well formed formula is made out of one or more atoms where an atom has one of the following forms। और keep in mind कि जो भी आपका फार्मूला बना होगा that will be composed of one or more atoms and an atom should have the following properties। What kind of properties जी? कि R of Si where Si is a tuple variable, जो भी अभी हमने जैसे डिफाइन किया था तो आपने tuple variable डिफाइन करना है and R is the relation। इसी तरह दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि si.a1 थीटा sj.a2 कि जी a1 इज द एट्रीब्यूट, ठीक है, ओवर विच si रेंजेस, और a2 इज एन एट्रीब्यूट ओवर विच sj रेंजेस। और थीटा कुड बी एनी कंपैरिजन ऑपरेटर कि जी लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। और इसी तरह जो तीसरी उसकी जो एटम की वो कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि si.a1 थीटा c के किसी कांस्टेंट के साथ भी उसको जो है वो आप उसका कंपैरिजन कर सकें। और अगेन a1 इज द एट्रीब्यूट ओवर विच si रेजाइड्स और रेंज करता है, ठीक है, रेंजेस, और c इज द कांस्टेंट। तो मतलब ये एक एटम मतलब कोई भी फार्मूला जो होगा वो एटम से बना होगा और एटम शुड हैव दीज प्रॉपर्टीज। अब वी कैन बिल्ड फार्मूलाए फ्रॉम एटम्स, और
एन एटम इज अ फार्मूला, ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर एटम हो और एटम की हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पिछली स्लाइड पे देखी थी, तो वो भी एक फार्मूला हो सकता है. इफ F1 एंड F2 आर फार्मूला, सो आर देयर कंजक्शन F1 एंड F2. अगर दो हैं तो उन दोनों की कंजक्शन वो भी फार्मूला होगा. डिसजंक्शन F1 और F2 और नेगेशन नॉट F1, ये भी फार्मूला होगा. इफ F इज अ फार्मूला विद फ्री वेरिएबल X, राइट, तो अगर X सच दैट F ऑफ X, तो अगर हम क्वांटिफायर्स को यूज कर लेते हैं तो स्टिल इट विल बी अ फार्मूला कि जी हम एग्जिस्टेंशियल या यूनिवर्सल क्वांटिफायर, मसलन पहले वो फ्री वेरिएबल था X, अब हमने उसको बाउंड वेरिएबल कर दिया, तो स्टिल दिस विल बी अ फार्मूला. तो मतलब ये कुछ थोड़ी सी बेसिक्स हैं हम, लेकिन हम जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया, हम नहीं जानना चाहते इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स में इस लेवल पे, तो हम जल्दी से कुछ अब क्विकली देख लेते हैं कि ये किस तरह जो है वो रिलेशनल कैलकुलस या ट्रिपल रिलेशनल कैलकुलस में स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं. ओके, सपोज लिस्ट द नेम्स ऑफ ऑल द मैनेजर्स हु अर्न मोर देन 25,000. तो आप देखें, हमने कहा जी क्या क्या उसका दिखाना है, नेम्स दिखाने हैं. तो हमने कहा S हमारा ट्रिपल वेरिएबल है, पहली बात S.F नेम कोमा S.L नेम. तो जो भी आप दिखाना चाहते हो, आपके जितने भी ट्रिपल वेरिएबल, मतलब आप उसके पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स दिखाना चाहते हो, सच दैट स्टाफ S के S विल रेंज, मतलब S की तमाम जो ट्रिपल वेरिएबल की रेंज कहाँ से आएगी या वैल्यूज पॉसिबल कहाँ से आएंगी, वो स्टाफ के रिलेशन से आएंगी. अब एंड हमने लगाया S.पोजीशन शुड बी मैनेजर्स, क्योंकि हमने कहा लिस्ट द नेम ऑफ ऑल मैनेजर्स, तो हम वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द नेम्स ऑफ द मैनेजर. तो हमने ये एंड के साथ ये भी लगाई. एंड अगली पोजीशन, मतलब पोजीशन के अलावा हमने एक और कंडीशन लगाई कि उनकी सैलरी भी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 25,000 होनी चाहिए. तो ये एक मतलब रिलेशनल कैलकुलस, ट्रिपल रिलेशन कैलकुलस का यूज करते हुए हमने एक एक्सप्रेशन लिखा. इसी तरह लिस्ट द स्टाफ हु मैनेज प्रॉपर्टीज फॉर रेंट इन ग्लासगो. तो आप देख सकते हो कि एस, तो इट मीन्स कि तमाम हम डिटेल्स देखना चाह रहे हैं स्टाफ की, ठीक है, सच दैट स्टाफ एस के, मतलब एस की तमाम जो डिटेल्स हैं वो स्टाफ में से आ रही हैं. फिर एंड एग्जिस्टेंशियल, बेसिकली हमने क्वांटिफायर यूज किया पी के लिए. तो प्रॉपर्टी फॉर रेंट हो सकता है वो देख रहा हो, तो मतलब एटलीस्ट कोई ना कोई एक तो प्रॉपर्टी फॉर रेंट हो सकता है वो देख रहा है, तो अगर कोई एग्जिस्ट करती है तो हमने इसलिए एग्जिस्टेंशियल लगाया. प्रॉपर्टी फॉर रेंट पी में से, एंड जब अभी इनकी मैचिंग की कंडीशन क्या है कि पी डॉट स्टाफ नंबर और इक्वल्स टू एस डॉट स्टाफ नंबर, जिनमें दोनों का स्टाफ नंबर इक्वल हो, तो वो फिर एंड पी डॉट सिटी इज इक्वल टू ग्लासगो, क्योंकि हमने सिर्फ उन प्रॉपर्टीज को देखना था जो ग्लासगो के अंदर हैं. ठीक है, तो ये आप इस तरह एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं. तो आई विल जस्ट गो थ्रू द स्लाइड्स, आप इनको देख लें कि इस तरह ये रिलेशनल कैलकुलस के आपके एक्सप्रेशन लिखे जाते हैं. इसी तरह लिस्ट द नेम ऑफ द स्टाफ हु करंटली डू नॉट मैनेज एनी प्रॉपर्टीज. अब इसको दोनों तरह से लिख सकते हैं हम, ठीक है, आप ये दोनों देख सकते हैं. ठीक है, मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, जस्ट आप इस बुक में से इन एग्जांपल्स को देख लें. इसी तरह लिस्ट द नेम्स ऑफ द क्लाइंट्स हु हैव व्यूड अ प्रॉपर्टी फॉर रेंट इन ग्लासगो. ठीक है जी, इसको भी आप देख सकते हैं कि जी हम सिर्फ क्लाइंट के नेम और लास्ट नेम देख रहे हैं, और क्लाइंट और प्रॉपर्टी फॉर रेंट दोनों के अंदर से जो है, प्लस व्यूइंग में से भी जो है आपकी तीन रिलेशंस के अंदर से इंफॉर्मेशन आ रही है. तो ये सारी आपकी स्टेटमेंट लिखी जाएगी इस तरह. इसी तरह ये कुछ और एग्जांपल्स हैं जो कि आप देख सकते हैं, मैं इनकी डिटेल में नहीं जा रहा, मतलब आप जस्ट इनको कंपेयर कर सकते हैं कि किस तरह रिलेशनल अलजेब्रा में यही वाली हमने स्टेटमेंट्स लिखी थी और रिलेशनल कैलकुलस में ये किस तरह रिप्रेजेंट होता है. अब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमारे इनफाइनाइट सेट कोई जो है वो जनरेट ना हो जाए, हम कोई ऐसा एक्सप्रेशन लिखें जो इनफाइनाइट सेट जनरेट करे, तो इस किस्म के जो है हमारे एक्सप्रेशन जो होते हैं उनको अनसेफ कहते हैं. सपोज ये एक एक्सप्रेशन है एस सच दैट नॉट स्टाफ ऑफ एस. What does it mean? It means set of all tuples that are not in the staff relation. तो it means इसके जो हमारे इसके अलावा जितनी पॉसिबिलिटीज हैं, तो मतलब ये एक इनफाइनाइट सेट है, जो हमारे स्टाफ रिलेशन के अलावा टपल्स हैं वो तो कुछ भी हो सकती हैं. तो मतलब वी शुड अवॉइड सच काइंड ऑफ सिचुएशंस बाय
adding some restrictions and providing the domain for that particular expression. तो अगर हम domain define कर देंगे तो it means कि उस किसी भी expression की जो value होगी वो उस domain के अलावा नहीं आ सकती, तो हम इस किस्म की किसी भी situation से avoid कर सकते हैं. डोमेन रिलेशनल कैलकुलस जो हमारी दूसरी फॉर्म है, हम उसको देख लेते हैं. हम जल्दी से इसको देखेंगे क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये मैथमेटिक्स से ज़्यादा रेलेवेंट है, तो हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस हमारा नहीं होगा, लेकिन वी वर जस्ट इंटरेस्टेड कि जी हम इसको देख लें कि कैसे आपके एक्सप्रेशन जो है वो रिलेशनल कैलकुलस के अंदर भी लिखे जाते हैं. अब ट्रिपल रिलेशनल कैलकुलस के मुकाबले में जो डोमेन रिलेशनल कैलकुलस है, दैट बेसिकली इसमें भी वेरिएबल्स यूज होते हैं, उधर वेरिएबल आपके ट्रिपल वेरिएबल्स यूज होते थे, लेकिन इधर डोमेन वेरिएबल्स यूज होते हैं, और वो जो वेरिएबल्स हैं दे टेक देयर वैल्यूज फ्रॉम द डोमेन इंस्टेड ऑफ द ट्रिपल्स ऑफ रिलेशन. तो ये एक खास इसमें डिफरेंस होता है. इसके अगर हम डोमेन रिलेशनल कैलकुलस का जो एक्सप्रेशन है उसकी फॉर्म देखना चाहें तो इट्स d1, d2, dn और सच दैट f ऑफ d1, d2 और dm तक, और m is greater than equal to n, where f is the formula और which could be again composed of atoms. जैसे हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि हमेशा फार्मूला जो है that will always be composed of one or more atoms. एंड एटम की हमने कैरेक्टरिस्टिक को भी डिस्कस किया था, वही वाली हम दोबारा भी देखेंगे. d1, d2 एंड dn रिप्रेजेंट्स द डोमेन वेरिएबल्स. ठीक है जी. ओके, वेर फॉर्म फार्मूला हमारा हमने जैसे पहले डिस्कस किया था कि इट कुड हैव वन और मोर एटम्स, और एटम्स की अगेन वही वाली प्रॉपर्टीज होंगी इसमें r, d1, d2 वेयर r इज अ रिलेशन ऑफ डिग्री n एंड ईच di इज अ डोमेन वेरिएबल. di theta dj होना चाहिए where di and dj are domain variables and theta could be one of the comparison operators. di theta dc होना चाहिए कि हम किसी भी डोमेन वेरिएबल को कांस्टेंट के साथ भी उसका कंपैरिजन ऑपरेटर मतलब कोई भी यूज करके उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं. फार्मूला बिल्ड करने का अगेन वही वाला मेथड है जो हम ट्रिपल रिलेशनल कैलकुलस के लिए हमने देखा था कि एटम इज अ फार्मूला. इफ f1 एंड f2 आर फार्मूला देन f1 एंड f2 कंजक्शन इज अगेन फार्मूला, डिसजंक्शन और निगेशन. अगेन इफ अगर हम एक हमारा वेरिएबल है x जो कि डोमेन वेरिएबल है और फ्री वेरिएबल है फार्मूला f के अंदर, और अगर हम क्वांटिफायर्स को यूज करते हैं, बाउंड कर देते हैं उस वेरिएबल को, तो स्टिल इट विल बी अ फार्मूला. ओके जी, अगर रिलेशनल डोमेन रिलेशनल कैलकुलस की हम एग्जांपल की बात करें तो वही वाली स्टेटमेंट जो हमने उधर लिखी थी कि फाइंड द नेम ऑफ ऑल द मैनेजर्स हु अर्न मोर देन 25,000 पाउंड्स, तो वो हम कैसे लिखेंगे? FN फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम सच दैट, और ये हमने एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का यूज़ किया. SN पोजीशन, सेक्स, डेट ऑफ बर्थ, सैलरी, ब्रांच नंबर, और ये किस रिलेशन में से आ रहा है? स्टाफ के अंदर से SN, FN, लास्ट नेम, पोजीशन और सारे एट्रीब्यूट्स. और ये जैसे हमने कहा था कि ये जो हमारे डोमेन के जो आपके वेरिएबल हैं दे विल बी बेसिकली टेक देयर वैल्यूज फ्रॉम द डोमेन जो कि आपकी उस रिलेशन की है, और हमने कंडीशंस भी स्पेसिफाई कर दी कि पोजीशन की जो है दैट शुड बी मैनेजर एंड सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 25,000 पाउंड. ओके, वही वाले सारे जो हमारे एक्सप्रेशन जो हमने पीछे सिनेरियोज थे उन्हीं को अब हम डोमेन रिलेशनल कैलकुलस में लिख रहे हैं. कोई थोड़ा सा इसका सिंटेक्स का डिफरेंस है, आप इनको देख लें खुद ही. आई होप कि आपको इसमें कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए. ये वही वाली जो हमने ट्रिपल रिलेशनल कैलकुलस को यूज़ करते हुए भी लिखा था, या हमने रिलेशनल अलजेब्रा में भी इसको लिखा था, आप देख सकते हैं. ये चंद एक हमारी एग्जाम्पल्स हैं, मैं इनकी डिटेल में नहीं जा रहा. फाइनली अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर में हमने कुछ और भी लैंग्वेजेस का जिक्र किया था इनके अलावा. तो एक हमारी ट्रांसफॉर्म ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं जो कि नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस हैं दैट यूज रिलेशंस, और हमने देखा कि हमारे जो हमारी एसक्यूएल होगी
या सीक्वल एक आई थी पहले उससे, और एसक्यूएल जो कि स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, एक स्टैंडर्ड क्यूरी लैंग्वेज है जो कि बेसिकली आप जितनी भी डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करते हैं उसके लिए यूज़ होती है, तो ये एक ट्रांसफॉर्म ओरिएंटेड लैंग्वेज है। इसी तरह हमने ग्राफिकल लैंग्वेजेस की बात की थी, और ग्राफिकल लैंग्वेजेस की एग्जांपल जैसे क्यूरी बाय एग्जांपल है, अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यूज़ किया होगा तो उसमें आप देख सकते हैं कि ये ग्राफिकल होती है और आपको स्ट्रक्चर रिलेशन का नज़र आ रहा होता है। यू जस्ट सेलेक्ट सर्टन या फिल इन सर्टन इन्फॉर्मेशन, और उस आपके क्लिक्स के ऊपर और आपकी उस फिलिंग के ऊपर जो है आपका तमाम जो है वो डाटा वो डिस्प्ले हो जाता है। तो ये जो है आपकी ग्राफिकल लैंग्वेज की एग्जांपल है। इसी तरह आपकी जो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस हैं उनमें हमने बहुत सारी देखी थी, जैसे हमने ग्राफिक्स जनरेटर देखे थे, हमने एप्लीकेशन जनरेटर देखे थे, फॉर्म जनरेटर की बात की थी। तो मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की आपके वो लैंग्वेजेस अवेलेबल है जो कि आपको जस्ट जो है वो मेन्यू के थ्रू आपको मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो आपको एप्लीकेशंस तक जो है वो आपको डेवलप कर देती हैं। इसी तरह जो सबसे लेटेस्ट इस एरिया में काम हो रहा है वो है नेचुरल लैंग्वेजेस, और नेचुरल लैंग्वेजेस इज़ जस्ट रिस्ट्रिक्शन ऑफ लाइक इंग्लिश लैंग्वेज, कि जी हम जस्ट सिंपल इंग्लिश में लिखें, कुछ रिस्ट्रिक्टेड हो, और वो हमें जो भी हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो हमें मिल जाए। लेकिन ये बिल्कुल लेटेस्ट रिसर्च एरिया है और इसमें अभी अर्ली स्टेज के ऊपर ही है, मतलब अभी काम हो रहा है इसके ऊपर। तो हम जो है होपफुली आने वाले वक्तों में हम इसका जो है काफ़ी जो है एडवांस्ड फॉर्म देखेंगे। इसके साथ ही हमारा ये वाला चैप्टर भी ख़त्म होता है जिसमें हमने रिलेशनल अलजेब्रा और रिलेशनल कैलकुलस को कवर किया, और बड़ी डिटेल के साथ कवर किया। रिलेशनल कैलकुलस को हमने ज़रा इतना ज़्यादा वो टाइम नहीं दिया, जैसा कि मैंने कहा कि उसकी चूँकि हमें उस तरह ऐसा ज़रूरत नहीं है, लेकिन जस्ट हमने देखा कि उसमें किस तरह एक्सप्रेशंस लिखे जाते हैं, और हमने इसको भी डिस्कस किया कि बेसिकली जो आपकी एसक्यूएल है उसका जो इन्हासार है या जो उसकी सारी वो वर्किंग है दैट इज़ बेस्ड अपॉन रिलेशनल अलजेब्रा और रिलेशनल कैलकुलस, उन दोनों के ऊपर ही है। तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं, और आई होप कि अब आपको जब हम एसक्यूएल शुरू करेंगे तो आपको चीज़ें थोड़ी आसानी होगी आपको चीज़ें समझने में। अगर आप अपने कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे जो है वो ठीक कर लेते हैं तो आई होप कि एसक्यूएल को समझने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो आज के लेक्चर की समरी को हम देख लेते हैं। हमने रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशंस जो हमारे रह गए थे, डिवीजन और एग्रीगेशन एंड ग्रुपिंग को हमने डिस्कस किया। फिर हमने रिलेशनल कैलकुलस को थोड़ा सा उसके बारे में कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट देखे कि वो क्या होता है। टुपल जो फिर आगे दो उसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, टुपल रिलेशनल कैलकुलस और डोमेन रिलेशनल कैलकुलस, इसको हमने किया कवर किया। अब आई वुड रिक्वेस्ट कि जी आप थोड़ा सा, जैसे मैंने बताया था कि ये चैप्टर भी और अगला जो हम एसक्यूएल को कवर करेंगे ये जस्ट लाइक मैथमेटिक्स है, तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये तो सारा आप पेपर पे भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एसक्यूएल जो होगी वो तो हम प्रॉपरली किसी डीबीएमएस के अंदर उसको यूज़ कर सकते हैं, तो आपको आपके रिजल्ट्स भी नज़र आएंगे। लेकिन यू नीड टू प्रैक्टिस अलॉट, ये एक चीज़ ज़हन में रख लें कि आप अच्छी तरह इस चैप्टर के एंड के ऊपर एक्सरसाइज दिए हैं उनको प्लीज़ ज़रूर देखें और इनको ज़रूर प्रैक्टिस करें। तो आज का हमारा लेक्चर जो है यहाँ पे ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह जो है अगले लेक्चर में दोबारा हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।